Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Welcome to the class. Your teacher Miss Fatima here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be good. Today we'll be starting a new chapter and that is a toy box. And it's a very interesting story. Hope you'll like it. Okay, before I get started with that storybook, so make sure you'll be having your pencil and notebook as usual in front of you so that you'll note all the difficult words and the meanings. So pay attention to the words very carefully. Okay, let's take a look on the word meanings first. Adjacent, next to, adjoining. Adjacent का मतलब होता है next to यानी कि बराबर में. Coal bunker, a storage area for coal for other fuel. अच्छा, कोल बंकर एक ऐसा एरिया होता है स्टोरेज जहाँ पे कोल जो है वो स्टोरेज कर सकते हैं. यहाँ पे किसी किस्म का कोई और फ्यूल ऑयल वगैरह हम स्टोरेज कर सकते हैं. डैम्प प्रूफ, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैम्प और राइजिंग मॉइस्चर. डैम्प कहते हैं गीलेपन को यानी कि नमी को. तो ऐसा कोई एरिया, ऐसी कोई प्लेस जो कि डैम्प प्रूफ हो यानी कि वहाँ पे पानी ना जा सके. इम्प्रेसिव, रिमार्केबल, मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग फेवरेबल इफेक्ट. अच्छा, इम्प्रेसिव यानी कि बहुत एक गुड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है यानी किसी पे कोई ऐसा इम्पैक्ट होना, असर होना. Intolerable, unbearable, impossible to endure यानी कि नाकाबिले बर्दाश्त. endure का मतलब बर्दाश्त करना होता है. Moodiness, given to frequent changes of mood, sulky. Moodiness यानी कि different swings of the mood यानी कि sometimes happiness or sometimes sad or sometimes shocking है, sometimes गुस्सा है यानी कि swings of mood is moodiness. Prospect, expectation, a vision of the future. Prospect यानी कि expectation जो कि कुछ लोगों में बात होती है कि फ्यूचर को देख लेते हैं यानी कि expectations यानी कि कुछ पता चल जाता है यहाँ यार ये फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है. That's known as prospect. Scaredy cat, sometimes is easily frightened. Someone who is easily frightened, कोई ऐसा बंदा जो कि बहुत आसानी से डर जाता हो, frightened जाता हो, scared जाता हो. Shuddered, shivers from fear. Shuddered का means you mean shivering यानी कि कांपना, trembling, डर के मारे. Vivid is producing lifelike images, colorful and fresh. Vivid you can say यानी कि lifelike images यानी कि इस तरह के images देखना जो कि colorful हो और fresh हो. Well manicured, neatly trimmed, साफ सुथरे, trimmed. 3 iron, it's a type of a golf club. Now start the story. Don't look, said father as he eased the car into a lower gear. Don't look, father said. कि अभी हम देखो, उसने जैसी गाड़ी को लोअर गियर पे डाला. लोअर गियर यानी कि जब गाड़ी बहुत ही स्लो स्पीड पे होती है, लोअर गियर्स पे होती है, दैट्स नोन एज द लोअर गियर्स. ओके, ही एंड मदर वर सिटिंग इन द फ्रंट. फादर एंड मदर, हमारे पेरेंट्स थे, वो फ्रंट पे बैठे थे. मेल्टीडा एंड आई इन द बैक यानी कि मेल्टीडा एंड आई बेसिकली जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, जो ये स्टोरी बता रहा है यानी कि उनका बेटा, वही बता रहे हैं कि वो जिसके सिस्टर थे वो बैक पे बैठे हुए थे. The tires made a pleasing crunch as they passed over the gravel. अच्छा, tires made a pleasing यानी कि crunches यानी कि कर की आवाज़ से passed over the gravel. gravel कहते हैं बजरी को. जब गाड़ी किसी बजरी पे या रेत पे चलती है तो कैसी आवाज़ आती है जी? कचरे की आवाज़ आती है. तो उस तरह की आवाज़ को crunching noise कह रहे हैं. Father drove steadily, trying not to scatter the stones over the manicured lawn on either side of the narrow drive. Drove is the past tense of drive. Steadily यानी कि फादर जो है बड़े ही स्मूथली, आराम से जो है एक प्रॉपर मैनर के साथ जो है वो चला रहे थे गाड़ी ताकि जो स्टोन्स है वो फैले नहीं, स्कैटर ना हो वहाँ पे. क्योंकि इसके जो ऑपोजिट था वहाँ पे वेल मैनिक्योर्ड, अदर साइड जो था लॉन, उस पर एक वेल मैनिक्योर्ड बहुत ही अच्छा सा ट्रिम सा साफ सुथरा सा एक लॉन था. I want you both to shut your eyes and only open them when I tell you. फादर ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी आंखें बंद करो और जब मैं कहूँ जब ही अपनी आंखें खोलना. Although we were excited at the prospect of seeing a new house. Prospect यानी कि वही एक expectation करना कि पता नहीं हम क्या देखने वाले हैं. Hopefully बहुत अच्छा देख रहे हो. हम बहुत excited थे कि पता नहीं हम अपना न्यू घर देखने जाएं तो वो कैसा होगा. We did as we were instructed. तो हमने वैसे ही किया जैसे हमारे फादर ने कहा. Mother had told us the week before that suitable accommodation had been found that we would be moving in today. अच्छा, मदर ने हमें एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि हम ऐसी accommodation, suitable accommodation का मतलब रिहाइश भी होती है. 2-3 इसके मीनिंग्स भी हैं. अगर आप इसको गूगल पर सर्च करोगे और you'll find the dictionary, you'll find more than one meaning over there. बट यहाँ पे रिहाइश का इसका मतलब है यानी कि रहने की जगह. तो एक हफ्ते पहले उनकी मदर ने उनको इस चीज़ के लिए जो है वो कर दिया था प्रिपेयर कि हम अपने नए घर जा रहे हैं. and have been found that we would be moving in today. और हमें ये मालूम चल गया था कि आज हम वहीं जा रहे हैं.
Father had said little. You'll see when we get there, he said in answer to our questions. आप लोग वहाँ जब पहुँचोगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा. The packers had been busy during the previous week. It had been fun-loving with boxes everywhere. अच्छा पैकिंग जो है वो पिछले हफ्ते से हो रही थी और बड़ा फन लग रहा था बॉक्सेस को पैक करने में. अच्छा यूजुअली होता ये है कि जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं या पैकिंग हम शिफ्ट कर रहे होते हैं, हम कहीं पर सामान भी पैक कर रहे होते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ऐसा होता है ना. Okay, then suddenly our magical playground had been whisked away and we were left with a few suitcases. अच्छा suddenly हमारा जो magical playground था, सब बहुत सारे suitcases थे, वो क्या हुआ था अचानक whisk away यानी कि take away, ख़त्म हो गए, चले गए थे. यानी definitely जब आहिस्ता आहिस्ता सामान move हो रहा है तो वो वहाँ से हट गए थे. The large gates we had passed through a little earlier were impressive and the gardens magnificent. अच्छा कुछ देर पहले जो चीज़ें थी बड़ी इंप्रेसिव लग रही थी, गार्डन से बड़ी खूबसूरत लग रहे थे, बड़े ब्यूटीफुल थे. स्प्रिंग ब्लॉसम्स वर एवरीवेयर. जो बाहर के फूल थे वो हर जगह नजर आए थे. बर्ड्स ट्विटर्ड इन द ट्रीज एंड बीज बजिंग अबाउट द फ्लावर्स. बर्ड जो थी वो भी चहचहा रही थी और जो बीज थी वो भी बजिंग कर रही थी फ्लावर्स के इर्द. But now, as we listened to the crunching gravel with our eyes shut, the suspense became intolerable. लेकिन जब जैसे ही हमने वो क्रंचिंग ग्रेवल जब बजरी पे गाड़ी चली और जो उसके अंदर से क्रंचिंग वॉइस आई तो हमारी आँखें और हमारी बंद थी, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो गया और became intolerable. हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे. You can open your eyes, announced father at last as the car ground to a halt. अच्छा फादर ने क्या कहा कि आप लोग अपनी आँखें खोल सकते हैं. अच्छा ground to a halt इसका मतलब है here we are using it as an expression. और इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जब slowly रुकती है, that's called ground to a halt. Wow, beautiful, said Matilda as we looked at the house for the first time. तो जैसे ही उन्होंने अपनी eyes open की first time के लिए तो Matilda ने कहा उसकी sister ने कि wow, it's so beautiful. Wow, scary, said I. The same way the boy said, this is scary. यानी कि इसको देखते डर लग रहा था उसको. Okay, so next we have the rambling mansion that stood before us seemed to lower into the tower into the sky. अच्छा rambling mansion कहते हैं घर को. Rambling means कुछ irregular सा लग रहा था, कुछ समझ में नहीं उनके आ रहा था कि वे कैसा mansion है. तो rambling कहते हैं regular को. तो before us seemed to right down lower था जो उसका बिल्कुल आसमान से टावर की तरह, यानी कि बहुत यानी जो बिल्डिंग थी ऐसा लग रहा था कि हाउस था काफ़ी टॉल था. It was immense. It was old and to me it seemed very spooky. अच्छा स्पूकी यानी कि कहते हैं घोंसले को, ठीक है, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूतिया घर होता है या बहुत ही घोंस इस तरह इसी के स्कैर्ड कहा गया है. और इमेंस का मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लार्ज, यानी कि घर था काफ़ी बड़ा था. There is nothing scary about it. You'll have a great time, said father. There is a plenty to explore. I haven't seen the whole of it myself. अच्छा फादर ने रिप्लाई क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ आपको डर लगे, ऐसा कुछ भी डरने वाली बात नहीं है. You'll have a great time here. तुम्हें यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है. And there's plenty to explore, यानी कि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पता लगने वाली हैं because मैंने खुद भी ये घर खुद से नहीं देखा है. Father, mother, Matilda was straight in the house, but I, a little less enthusiastic, followed in my own time. अच्छा father, mother ने और Matilda थे वो went straight house पे चले गए, लेकिन मैं था ज़रा कम जोश में था. Enthusiastic कहते हैं जोशीले को. मैं कम जोश में था इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम पे मैं आगे गया. Okay, so I caught up with the others in spacious living room. अच्छा I caught up यानी कि मैंने उनको बहुत जल्दी जाकर उनको कैच कर लिया, उनके साथ में मिल गया और बाकियों के साथ. स्पेशियस लिविंग रूम, स्पेशियस कहते हैं बहुत स्पेशियस यानी कि बहुत बड़ी जगह को, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो जिस रूम में. एक्साइटेडली मदर ने कहा कि आप लोग के जो बेडरूम्स हैं वो अपस्टेयर्स हैं. एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड, शी वाज वेरी हैप्पी. एंड देयर इज अ लार्ज रूम एट द साइड ऑफ द हाउस ऑन द ग्राउंड फ्लोर व्हिच यू कैन यूज एज अ प्ले रूम. और एक जो है वो साइड रूम भी है, एक बड़ा सा रूम है जिसको तुम लोग प्ले रूम की तरह जो है आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो. शी लेड द वे अलोंग अ डार्क कॉरिडोर एज वी फॉलोड. अच्छा लेड इज अ पास्ट टेंस ऑफ लीड, यानी कि वो हमें जो है रास्ता दिखाते हुए एक डार्क कॉरिडोर कहते हैं बाहर का पैसेज, यानी कि रूम्स के बाहर जो पैसेज होता है गली टाइप होती है उसको कहते हैं कॉरिडोर. वो एक डार्क कॉरिडोर में हमको लेकर हम उसको फॉलो करते हुए मदर को फॉलो करते हुए चले गए. द प्ले रूम वॉज इंडीड लार्ज एंड सीम्ड कोल्ड एंड डैम्प. अच्छा प्ले रूम था वो काफ़ी बड़ा था और बड़ा ठंड लग रहा था और बड़ा नमी वाला लग रहा था, डैम्प लग रहा था. We'll have it warmed up in no time, Tom, father assured me, noticing that I had shuddered when it went on to explain.
अच्छा, हम टॉम के फादर ने कहा हम इसको जो है वो वार्म कर लेंगे, गर्म कर लेंगे, क्योंकि वो नोटिस कर रहा था कि फादर नोटिस ये कर रहे थे कि मैं जो हूँ वो शिवर कर रहा था, आई वाज ट्रेम्बलिंग. So he went on to explain, because if no one has lived here for some time and the heating has been turned off, there's plenty to discover and we'll have fun finding out where all the rooms are. जो फादर ने कहा चूँकि ये जो घर है काफ़ी अर्से से बंद था, इसलिए यहाँ का जो हीटिंग सिस्टम है वो भी ऑफ है, और स्टिल जो है यहाँ पे बहुत सारा हमें डिस्कवर करने के लिए है, तो तुम लोग को फन लगेगा यहाँ पे जितने भी आप लोग रूम्स जो है उसको देखेंगे. An hour later, एक घंटे के बाद क्या हुआ? When we had been through the house from top to bottom, up staircases and down others and then out of umpteen rooms. तो एक घंटे के बाद जब हम लोग घूमते रहे और यहाँ वहाँ जाते रहे, हमने सारे रूम्स देख लिए. umpteen कहते हैं several rooms को, यानी कि काफ़ी सारे रूम्स हमने जो देख लिए. Return to the playroom. A large toy box had been placed against the far wall of the room. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो टॉय बॉक्स था वो रूम के उस तरफ ही जो है वो कॉर्नर पे रखा हुआ था, और हम प्ले रूम में चले गए, जो वहाँ पे हमारी मदर ने हमें शो किया था कि देयर इज अ प्ले रूम फॉर यू. ओके, सो Fatima and Matilda went straight to it to unpack some toys. अच्छा, Matilda थी वो टॉयज को अनपैक करने के लिए चली गई. She took out what she needed and then answering a call from mothers upstairs off to find out what she was being summoned. अच्छा, वो अभी टॉयज का अपने बॉक्स को अनपैक कर ही रही थी कि उसको जो है अपनी मदर की आवाज़ आई जो उनको कॉल कर रही थी. ठीक है, was being summoned. Summon का मतलब होता है to call someone. I stood again is the past tense of stand. I stood in silence alone in the large room, and then I heard upstairs, Raju. It was then that I heard for the first time a feeble cry followed by a long moan. अच्छा, उसके बाद वो रूम में डेफिनेटली अकेला रह गया, तो उसने क्या फील किया कि एक बड़ी फीबल क्राई, यानी बड़ी कमज़ोर सा रोने की आवाज़ आई, बाय लॉन्ग मोन, यानी कि बहुत ही ज़ोर से जो है, लॉन्ग मतलब एक बहुत ही लंबी मोन करी थी, यानी कि बड़ा ही करहाना, जैसे कोई दर्द से करा रहा है, अक्सर रोती हुई आवाज़ें आती हैं, तो ऐसी एक वॉइस को सुनाई दी. It seemed to come from the box, but this was just not possible. अच्छा, ये जो आवाज़ थी उस बॉक्स में से आ रही थी जो कॉर्नर के टेबल पे रखा हुआ था, लेकिन उसने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था. वाह वाह वाह. सो दिस सीम्स कि एक बहुत सस्पेंसी स्टोरी है, मज़ा आने वाला है, बट आई एम एंडिंग अप हियर. ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.